Hello students, the question is assertion. A proton and an electron enter a uniform magnetic field B with the same momentum P such that P is perpendicular to B. They describe the circular paths of the same radius. Reason. In a magnetic field, orbital radius r is equal to P upon QB. So the problem is based upon the topic, the charged particle moving in a magnetic field. So we know that when the momentum is perpendicular to B, then the path is a circular path because the force is given by F equals to QV cross P. And when V and B are perpendicular, because V is directly proportional to the P, and whatever be the direction of velocity, the direction of momentum is same. So when V and B are perpendicular, we know that the formula is F equals to Q V cross B. So when V and B are perpendicular, then the force is perpendicular to both of them and it will try to move the particle in the circular path. So assertion is a correct statement. Now in the assertion, it is also said that they move in a path of same radius, sir. The circular path is having the same radius. So the same radius can be explained by the reason. In the reason it is written that the radius r is equal to P upon QB. So r is equal to P upon QB. So for both the particles, it is given that the momentum is same. Their charge is also same. The charge of the electron as well as proton is also same. It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And the magnetic field in which they are entering is also same. So it means that they will follow the same radius path. So the reason is also the correct statement and is an explanation of the assertion. So in this way, we can say that both the assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. So in assertion reasoning based problems, we know that A option is correct when both the assertion as well as reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. So option A is correct here. तो ये प्रॉब्लम जो है बेस्ड है एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. ये असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है. इसमें कहा गया है दो चार्ज पार्टिकल हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है. दोनों ही एंटर करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और दोनों के मोमेंटम सेम है और मोमेंटम परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे जिसकी सेम रेडियस होगी. ये असर्शन का स्टेटमेंट है. रीजन का स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिटल रेडियस होती है वो बराबर होती है P अपॉन QB, वेयर P है हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. पहले असर्शन को एनालाइज कर लेते हैं. असर्शन में कहा गया है कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो एक निश्चित वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो दिया जाता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी. यहाँ पे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी यानी कि वही फोर्स की डायरेक्शन होगी और मोमेंटम और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं बिकॉज वी नो दैट P इक्वल्स टू mv. यहाँ m एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी. तो अगर हम कहते हैं कि मोमेंटम परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है B के. और जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. यहाँ पे जो है सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा पार्टिकल. ये एक फैक्ट के तौर पे भी हम याद रख सकते हैं. साथ के साथ रेडियस सेम होगी वो हमें पता लगता है रीजन से. रीजन में दिया गया है रेडियस बराबर होती है P अपॉन क्यू बी के. कहीं कहीं टेक्स्ट में आपको R बराबर mv अपॉन क्यू बी की फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला देखने को मिलता है. तो यहाँ पे P दोनों के लिए सेम है, मोमेंटम सेम दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए. Q यानी दोनों का चार्ज सेम होता है, बस केवल साइन डिफरेंट होता है लेकिन चार्ज सेम होता है तो Q को भी हम सेम कहेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि वो एंटर कर रहे हैं दोनों ही पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी दोनों के लिए सेम है. तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टिकल की जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की
वो सेम होगी। तो यहाँ पे रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स में ऑप्शन ए इंडिकेट करता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।